A pointer in C++ is a very important concept. It can take your understanding from a beginner to advanced really quick. Well, it saves time complexity in a lot of places, and by definition, a pointer means a variable used to store the memory address of another variable. Now let's jump into the code and see it and how it works. वीडियो के लास्ट में 2 URL बताइए जहाँ पे तुम पॉइंटर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. फ्री है, Geeks for Geeks पे है. एटलीस्ट वो चेकआउट कर लेना, इवन दो वीडियो में बीच में बोर हो गए हो, कंटेंट अच्छा ना लगे, कुछ भी हो, बट एटलीस्ट वो चेकआउट कर लेना. आई डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और प्रैक्टिस करके ही आएगा पॉइंटर, देखो. सो डू चेक देम आउट. जस्ट वांटेड टू कॉल आउट ये. बैक टू द वीडियो. Let's start with some basic data types first, like integer, string and boolean, and then we'll jump on to array. Now, there are two things that I want to signify before we start anything. There are two types of special operators. One is star, which is known as dereference operator, and there is ampersand, which is known as address operator. Sorry, address of operator. Now, what these two operators do, I'll explain you in a while. So, if we have to create a new integer, let me go on to the coding part or the Visual Studio. Now, if we have to create a new integer value, what we will do is int integer value equals to 42, right? This will assign this integer value a value of 42. So that is simple. We already know that. Now, internally, what will happen is this 42 will be stored somewhere in the memory. Let's say the memory address here is of value 1000x. So this 1000x memory will store our number 42. Now we do know this 42 and the reference to it by using this variable which is integer value. तो हम इस variable को use करके इस particular integer को access कर सकते हैं. बट अगर हमें इसके पीछे जो memory है उसको access करना हो तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए pointer आता है, क्योंकि हमें कई बार C++ के अंदर मेमोरी के साथ मैनिपुलेशंस करने होते हैं. हम अगर मेमोरी ही भेज दें तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम और ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं. अब अगर हमें इस 42 का मेमोरी एड्रेस निकालना है, बेसिकली वी नीड समथिंग टू पॉइंट it to 1000x which is here. We will create a memory pointer to it. But उससे पहले how do we use this integer variable we just created यहाँ पर, and how do we print the memory address of it, right? तो अभी देखो, दो चीज़ देखो, ये दो लाइन हम रन करते हैं and let's see. Now if I try to compile this and build this line, so I'll do g++ sample, and when I'll run is a.out, right? इसके अंदर if we see here and if I zoom on this a little bit, we can see the value of integer is 42 and the address of integer value is 0x and this random number out here. So this is the memory address, and if I show you in the screen, just realize that we are using this ampersand symbol that which I called out to be address of variable, right? This variable is used to find address of any डेटा टाइप दैट यू हैव क्रिएटेड. सो यहाँ पर तुमने इंटीजर बनाया था, जैसे ही तुम उस इंटीजर वैल्यू के आगे एम% लगा दोगे, वो उस इंटीजर वैल्यू कौन से एड्रेस पे स्टोर्ड है वो देने लग जाएगा. यहाँ पर मैं स्ट्रिंग भी बना सकता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू हेलो वर्ल्ड, और वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग आगे इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू इज दिस एंड एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू. अब एक बार इसको रन करके देखते हैं. इफ यू रन दिस, लेट मी जूम इट अप, एंड इधर देखो इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू हमारी हेलो वर्ल्ड आ रही है, और जो एड्रेस है उस स्ट्रिंग वैल्यू का विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटीजर का एड्रेस, राइट? तो हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालने के लिए ये एम% यूज़ करते हैं, राइट? इतना अगर तुम्हें समझ आता है तो अगला पार्ट ईजी होने वाला है हमारे लिए. अब आती है लाइन नंबर 12, जिसके अंदर हम एक इंट स्टार करके एक वेरिएबल बनाते हैं. देखो, इंट के अंदर और इंट स्टार में एक डिफरेंस है. जब तुम इंट लिखते हो तो उसका मतलब है तुम एक इंटीजर डेटा टाइप का बना रहे हो, इंटीजर डेटा टाइप होना, और जब उसी इंट के सामने तुम इंट स्टार लगा देते हो तो वो एक इंटीजर मेमोरी डेटा टाइप होता है. तो अब वो जो डेटा टाइप है वो इंटीजर नहीं स्टोर करेगा, वो एक इंटीजर को रेफरेंस करने वाली मेमोरी स्टोर कर सकता है. देखो, दोनों में फ़र्क है, और इस पॉइंट पे मेरे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था जब मैं अपने कॉलेज में था. इंटीजर को स्टोर करना और इंटीजर की मेमोरी स्टोर करना बहुत ज़्यादा फर्क होता है. और जब हम स्टार लगा देते हैं इंट के आगे और एक वेरिएबल के नाम से पहले, तो वो इंटीजर को स्टोर करने वाले वेरिएबल की मेमोरी स्टोर करता है. अब हर वेरिएबल एक अलग डेटा साइज का होता है, इसलिए हमें हर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए एक डिफरेंट टाइप का पॉइंटर चाहिए होता है. जैसे इंट होता है, उसका डेटा साइज होता है 4 बाइट्स का या 2 बाइट्स का भी हो सकता है. अगर तुम एक कैरेक्टर बनाते हो उसका साइज होता है 1 बाइट का. अगर तुम फ्लोट बनाते हो तो उसका डेटा साइज होता है 4 बाइट का, और डबल बनाते हो तो उसका डेटा साइज होता है 8 बाइट का. तो इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए एक इंटीजर को रेफरेंस करने वाला पॉइंटर सिर्फ इंटीजर को ही स्टोर कर पाएगा, वो फ्लोट को या फिर वो दूसरे किसी और डेटा टाइप को नहीं स्टोर कर पाएगा. तो अगर मान लो हमें स्ट्रिंग को स्टोर कराना है तो हम एक स्ट्रिंग को स्टोर कराने वाला ही पॉइंटर बताएंगे. पॉइंटर टू स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे, और वही एम% सिंबल जो कि हमने डिस्कस किया था टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, वो यूज़ करके उसमें इनिशियलाइज करा देंगे.
तो अगेन स्ट्रिंग के बाद अगर हम ये स्टार और डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा देते हैं, वो क्या करता है, वो फिर मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है रेदर देन स्टोरिंग द एक्चुअल वेरिएबल। सो अब ये स्ट्रिंग स्टार उस स्ट्रिंग की वेरिएबल की मेमोरी को स्टोर कर रहा है, मतलब मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर रहा है। अब ये तो हो गई स्टोर कराने की बात। तो हम एक पॉइंटर से वापस वैल्यू भी रिट्रीव कर सकते हैं और एक वैल्यू से पॉइंटर भी बना सकते हैं। तो दोनों साइड से हम टू एंड फ्रो जा सकते हैं, विच मीन्स मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हम एक पॉइंटर से वैल्यू भी रिट्रीव कर सकते हैं, हम एक वैल्यू से उसका एड्रेस भी रिट्रीव कर सकते हैं, और हम एक एड्रेस से उसका पॉइंटर तो बना ही सकते हैं, हमने अभी चेक किया। तो ये 3 चीज़ें हमने सीख ली हैं अभी। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम कैसे एक पॉइंटर को यूज़ करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर पॉइंटर टू स्ट्रिंग करा है, तो अगर हम इसी पॉइंटर को अगर हम लेट्स से हम सी आउट करते हैं पॉइंटर वैल्यू पॉइंटर टू स्ट्रिंग, अगर हम इसको डिस्प्ले करते हैं, अभी देखना क्या वैल्यू आता है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि यू गाइस कैन सी इट बेटर। और ये मैंने रन किया, ठीक है। स्ट्रिंग वैल्यू हेलो वर्ल्ड एक्सपेक्टेड है। पॉइंटर टू स्ट्रिंग, तो पॉइंटर टू स्ट्रिंग के अंदर हमारा आ रहा है पॉइंटर वैल्यू। तो इसके अंदर हमने देखो डी रेफरेंस, हमने इसमें एम्परसेंड ऑपरेटर यूज नहीं किया है, हम वी हैव नॉट यूज्ड एंड हियर, बट स्टिल वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर एड्रेस, क्योंकि ये जो स्टार लगाने की वजह से ये पॉइंटर जो है ये एड्रेस ही स्टोर करता है। अब सिंस ये एड्रेस स्टोर कर रहा है और मेरे को एक्चुअल वैल्यू चाहिए कि इस एड्रेस पे क्या स्टोर्ड है, तो मैं इसके आगे अगर स्टार पॉइंटर लगा दूंगा तो वो मेरा डी रेफरेंस कर देगा उसको, और अब मेरे को वैल्यू स्टोर होने लगेगी। अगर मैं इसको तुम्हें सेव करूं और इसको रन करके दिखाऊं, लेट मी क्लियर इट अगेन, और मैं G++ कंपाइल करता हूं और मैं रन करता हूं, तो देखो पॉइंटर टू स्ट्रिंग में वैल्यू है इस वाले में, सॉरी इस वाले के अंदर वैल्यू है एड्रेस की, लेकिन जैसे ही मैंने स्टार ऑपरेटर लगाया वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू इज हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। सो दिस वन विल प्रिंट द वैल्यू। सो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अगर हम किसी इंट फ्लोट एक्चुअली मैं तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अगर हम कोई भी डेटा टाइप लें जैसे कि इंट, और मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, जैसे हम इंट ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, और अगर हम उस डेटा टाइप के आगे, अगर ये डेटा टाइप है और इसका हमने कोई भी वेरिएबल बनाया हुआ है, वेरिएबल है हमारे पास लेट्स से एक्स, तो अगर हम एंड एक्स लिखते हैं तो ये उसका एड्रेस बना देता है। अगर हम इसी एंड एक्स को स्टोर कराना है तो हमें एक मेमोरी टाइप के वेरिएबल में ही स्टोर कराना पड़ेगा, विच विल बी एक्स पॉइंटर, और एंड एक्स करके हमें एड्रेस एक एड्रेस टाइप के पॉइंटर में स्टोर कराना पड़ेगा। और अगर हमें कल को इस एक पॉइंटर से हमें उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो हमें सी आउट करते टाइम स्टार करके एक्स पॉइंटर करना पड़ेगा, ताकि हमें उस एड्रेस की जगह उस एड्रेस पे जो स्टोर्ड है उसकी वैल्यू निकले। तो जो हमारा m% है वो एड्रेस निकालता है, जो हमारा स्टार पॉइंटर है वो एड्रेस से वैल्यू निकालता है। तो ऐसा है कि एक लेफ्ट से राइट जाता है, दूसरा राइट से लेफ्ट लाता है, दैट्स इट। असाइन कैसे करना है उसके लिए बेस्ट चीज़ होगी तुम अगर लेफ्ट साइड को राइट साइड से इक्वेट करते हुए असाइन करो। तो अब आती है एरे की बात। एरे एक थोड़ा स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है, क्योंकि एरे के अंदर यू स्टोर मल्टीपल इंटीजर्स वन आफ्टर अदर, बट एरे इज अ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, विच मीन्स कि अगर तुम्हारा पहला लेट्स से यू हैव क्रिएटेड एन एरे एंड इट्स एरे ऑफ 5 इंडेसेस, ओके। सो द एरे ऑफ 0 अगर तुम्हारा मेमोरी एड्रेस 1000x पे स्टोर्ड है तो तुम्हारा एरे ऑफ 1 मेमोरी एड्रेस ऑफ 1002x पे स्टोर्ड होगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर वो इंटीजर का एरे है या फिर स्ट्रिंग का एरे है या कैर का एरे है। तो अगर वो इंटीजर का है तो इंटीजर नेटिवली 2 बाइट्स लेता है, तो अगर वो 2 बाइट्स लेता है दैट मीन्स कि 2 एड्रेस स्पेसेस स्किप करेगा। अगर वो कैरेक्टर है, अगर यही एरे कैरेक्टर का होता तो मे बी यहाँ पर 102 की जगह 101 होता, तो वो एक मेमोरी एड्रेस को स्किप करता। तो एरे के अंदर एक कंजिक्यूटिव ब्लॉक ऑफ मेमोरी होती है। तो अगर 5 मेमोरी का तुम्हें एरे बनाना है तो दैट विल लेट्स से इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1000, तो तुम्हें एंड एड्रेस उसका पता हो सकता है कि उसका एंड एड्रेस 1005 ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी। मैं एरे कंसिडर करता हूँ तो 1000x, 1002x, 1004x, 1006x एंड 1008x, तो ये तुम्हारी मेमोरी होंगी। अब अगर हम एक एरे बनाते हैं, जैसे कि मैं अगर विजुअल स्टूडियो कोड पे जाऊँ तो अगर मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ क्योंकि आई होप ये समझ आ गया होगा, और यहाँ पर मैं एक एरे बनाता हूँ, इंट एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स, और ये 5 एलिमेंट्स ऑटो कंप्लीट कर दिए, गुड। अब देखो अगर मैं सी आउट ऑफ एरे करूँ तो क्या लगता है, एरे को प्रिंट करूँ तो क्या लगता है क्या होगा? क्या हमें फर्स्ट एलिमेंट दिखना चाहिए, क्या हमें कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, या हमें एक एड्रेस दिखना चाहिए? वेल एक्चुअली ऑटो कंप्लीट ने थोड़ा गिव अवे कर दिया, बट अगर मैं इसको प्रिंट आउट करूं तो मेरे को एरे का एड्रेस दिखेगा, विच इज़ दिस वन। सिंस एरे एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है अगर हम इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर 0 ना लगाएं तो जो ARR इटसेल्फ एक एड्रेस होता है जो कि उसके स्टार्ट का एड्रेस होता है, और जब हम 0 लगाते हैं तो इसका आइडियली मतलब ये होता है कि हम ARR को के आगे एक स्टार पॉइंटर लगा दें।
अब स्टार पॉइंटर हमने पहले देखा था, अगर मैं वापस जाऊँ तो स्टार पॉइंटर क्या करता है, एक बेसिकली एक एड्रेस से उसकी एक्चुअल वैल्यू प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टार पॉइंटर लगाऊँ तो अब 1 आना चाहिए, राइट। लेट्स सी, कंपाइल किया, रन किया, 1 आ रहा है। तो स्टार, सिंस एरे मेरा एक एंड वाला डी रेफरेंस या एड्रेस का वेरिएबल है, अगर मैं उसको डी रेफरेंस करता हूँ तो मेरे को फर्स्ट एलिमेंट देता है। अब एक फन चीज़ दिखाता हूँ, राइट। अब एरे मेरा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था और हो रहा था। अब अगर मैं इस एरे के अंदर 1 ऐड कर दूँ तो क्या होगा? Actually, what will happen is array was initially pointing to the first element. When I add 1 into it, it will start pointing to the next array, next element of the array. So this plus 1 will now point to 2 because it is start plus 1. So if I compile this and if I run this, see, it is now pointing to 2. If I add 2 in it, so it will start pointing to 3 now. So array is nothing but, if I write array of 2, this is equivalent to me writing dereferencing pointer of array plus 2. So these both of these things are true. So ये होता है हमारा एरे को यूज़ करके और बेसिकली पॉइंटर समझना एरे के केस में। तो ये तो हो गई एरे की बात। आई नो ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट आई हैव सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर यू जो कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा ईजी कर देगा। देखो आएगा टाइम के साथ ही, कोई भी ट्यूटोरियल पढ़ा दे उसके बाद भी तुम्हें दिक्कतें आ सकती हैं। So some practice problems are here on Geeks for Geeks. You can go onto this URL. I'll paste the URL in the description, so make sure कि you find it. और इसके अंदर देर आर सर्टेन प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो तुम सीखो और इससे समझ कर अपना खुद ट्राई आउट करो, आंसर देखो, डिस्कस करो और समझो। जब बेसिक्स हो जाता है तो कम ऑन टू दिस क्विज अबाउट C++ पॉइंटर एडवांस वाला एंड यू डू दीज एडवांस प्रॉब्लम्स। जब ये सब हो जाएंगे तो यू विल बी मास्टर इन पॉइंटर, यू वोंट नीड एनीथिंग एट ऑल। तो ये चीज़ मैं पहले ही नोटिफाई कर देना चाहता हूँ ताकि तुम बाद में प्रैक्टिस अपनी भरपूर कर लो और तुम पॉइंटर्स में मास्टर कर लो। अब एक चीज़ इसके अंदर ये पॉइंटर्स यूज़ आते हैं वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कॉल बाय रेफरेंस। तो बेसिकली देयर आर 2 वेज ऑफ कॉलिंग एनी फंक्शन इन C++। या तो तुम उसके अंदर वेरिएबल्स पास कर सकते हो बाय रेफरेंस, विच मीन्स कि तुम उसके अंदर मेमोरी एड्रेस दे दो और वो तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू चेंज करेगा, या फिर कॉल बाय वैल्यू होता है जिसके अंदर तुम उसके अंदर सिर्फ वैल्यू पास करो और वो इंटरनली एक नया वेरिएबल बनाता है। तो इसके अंदर कॉल बाय रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेटर होता है क्योंकि उसके अंदर नया वेरिएबल बार बार नहीं बन रहा होता है। अब इन सब के बारे में मैं ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा यहाँ पर बता के, बस छोटा सा हिंट देना था कि ये यूज़ कहाँ होते हैं। उसके बारे में यू विल रीड जब तुम फंक्शंस में जाओगे तो, और फंक्शंस किस तरह के होते हैं उन सब के अंदर जब तुम जाओगे तो यू विल नो कि पॉइंटर क्या होते हैं, कहाँ पर यूज़ आते हैं और कहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होती है। बट फॉर नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप थोड़ा बहुत पॉइंटर तुम्हारे लिए क्लियर हुआ होगा, बट इवेंचुअली वो सब प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। आई होप यू विल प्रैक्टिस एंड गुड लक।